السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، نور حسن رضوی نیٹ ورک کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے اور دیوبندیوں کا اوریجنل اور بدنما چہرہ آپ کے سامنے آ جائے۔ سنی انبیاء اکرام کی جس کمال کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، وہابی دیوبندی اسی کمال کو شرک بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے ہر کمال کو تسلیم کرتے ہیں، انبیاء اکرام کے کمال کو انکار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس ویڈیو کو۔ ہیلو ہیلو، ہاں جی، کون؟ السلام علیکم۔ کون صاحب؟ ہیلو جی، میں ارشاد بول رہا ہوں۔ ارشاد بھائی کہاں سے؟ میں بول رہا ہوں بنارس سے۔ اچھا جی، جو ابھی واٹس ایپ پہ شاید دوسرا نمبر دیا ہے کیا؟ نہیں، میں آج میں کال لگایا ہوں، فرسٹ ٹائم آپ کے پاس تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے۔ کیا چیز؟ آج میں آپ کے پاس کال لگایا ہوں، کون پہلے بار؟ اچھا پہلی بار۔ جی، آپ کا مسلک ارشاد بھائی؟ اس سے پہلے کال لگایا آپ کے پاس۔ اچھا، آپ کا مسلک؟ مطلب کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں بھائی کسی جگہ سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، میں علی گڑھ اسی کے اسکالر ہوں۔ جی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی؟ جی، اچھا میں وہاں کا ایک اسکالر ہوں۔ جی، اچھا، اسکالر آپ کا ویڈیو جو ہے، جی، اچھا تو میں آپ کا ویڈیو وغیرہ دیکھ رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں جہاں سے ہم کو علم کی بو آتی ہے وہاں میں اپنا حصہ لینا چاہتا ہوں، تو میں سوچا کہ آپ سے بھی تھوڑا حصہ لوں، مستفید ہو جاؤں۔ جی، میں کوئی اتنا بڑا کوئی آدمی نہیں ہوں اور نہ میں کوئی اسکالر ہوں بھائی جان۔ نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جیسے علم کہیں سے بھی ملے تو آدمی کو تھوڑا اس کو جو ہے حاصل کرنا چاہیے نا ایڈاپ۔ تو میں نے سوچا کہ ہو سکے بھائی آپ سے، جب آپ آپ کی ویڈیو چل رہی ہے اس پہ تو بہت ساری چیزیں سنی ہم نے، تو ہم نے بھی سوچا کہ کچھ چیزیں ہو سکے آپ سے ہم بھی سیکھ لیں۔ زبردست۔ اور بتائیے حضرت، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بس الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ جی، کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ جی، کہاں سے آپ کو سوشل نیٹورکنگ چلاتے ہیں؟ جی، آپ کا ویڈیو بھی چلاتے ہیں؟ سے ہوں۔ اچھا، رامپور۔ آپ کا یہ یوٹیوب والا ویڈیو وغیرہ چلتا ہے، آپ ہی کا ہے؟ جی۔ اچھا، اور بتائیے، سب ٹھیک ٹھاک خیر ہے؟ ہاں الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ تو کون سی آڈیو سنی آپ نے بھائی جان؟ ارے آپ کی وہ کیا دیوبندی بریلی کیا، اس میں آپ لوگ چلتا ہے، ہم کو معلوم نہیں، بیت وغیرہ عقائد پہ کیا ہوتا ہے۔ اسکالر کس چیز میں ہیں آپ؟ میں اسکالر ہوں اس میں اسلامک اسٹڈیز کا۔ اسلامک اسٹڈیز کے اگر آپ اسکالر ہیں تو آپ کو یہ بھی ضرور معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ جی، وہ تو معلوم ہے، وہ تو سبھی جانتے ہیں بھائی، اتنا بھائی وہ علم تو جو ہے مسلمان میرے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اس میں علم تو سبھی کو رہتا ہے۔ جی ہاں، جیسے میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ آپ کا مسلک کیا ہے تو آپ نے ایسے نہیں، تو مسلک تعلق سے ہم مطلب اس پیچیدگی میں نہیں پڑھتے ہیں۔ جی، دنیا کے اور بھی تو بہت سارے مسائل ہیں، اس زندگی میں اس کو آدمی حل کرے گا، کسی میں الجھ کے نہیں نہ رہے گا۔ اس کو الجھ کے ایسا تو نہیں کہ کھانا ملے گا یا تو کسی چیز ملی۔ اسکالر صاحب، یہی اصل ہے ارشاد بھائی، یہی اصل ہے، یہی مین ہے۔ پہلے ایسے لوگوں کے ساتھ رہا جائے جو کہ ایمان والے ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، وفادار رسول ہیں، یہی پہلے اصل ہے۔ اگر کسی کے بھی ساتھ ہو لیے تو پھر پتہ نہیں کہ ہوگا کیا۔ کسی کے ساتھ بھی ہو لیے تو وہ تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے کسی کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو اپنے جاننے والے ہیں، قریبی ہیں، علم دوست ہیں، ذی علم ہیں، ان کے ساتھ آدمی رہتا ہے، بولتا ہے، بات کرتا ہے اور زندگی کے جو اس سے پیچیدہ مسائل ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج دیکھیے، آج کل سماج میں جو ہے کتنے لوگ، بہت ساری چیزیں ہیں تو کسی کو صحیح بنیادی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے کسی کی، تو وہ ایک بھوکے کو اگر کھانا کھلایا جائے، وہ جو کہ عنقریب جس کی ضرورت وہ اس سے اصل ہے نا، ہم تو اس کو مان کے چلتے ہیں۔
हमारे देखिए जो वो सब स्कॉलर बाद हैं, में हमारे है, जो वो सब बाद में है, उस सब की असल है ईमान। ईमान तो वो तो बात कहे, ये तो हाँ वो तो जनाब, हमने उस आपसे सब पहले की ही कहा, असल है ईमान तो है ही ईमान, है। वो सारे काम बाद में है। हम्म, हाँ, वो सारे काम तो बाद में है ईमान तो है भाईजान। ही। आप बाद वाले जी कामों को पहले ले लेते हो, पहले वाले काम को छोड़ देते हो यार, यही तो समझ में नहीं आती बात। नहीं तो हमने तो आप भाई इसका ईमान, इस्लामी जब हमने स्कॉलर आपको सलाम किया, हमने आपको सलाम, और भाई एक मुस्लिम से जब भाई बात करता है तो उससे जब बात करता है तो उससे सलाम करता है, और जो है उसकी खैर खैरियत मालूम होता है, तो वो इसकी इस्लाम की पहचान उससे नजर आ जाती है। तो बाकी बातें जो होती हैं वो बाद में होती ही रहती हैं। तो उससे तो इंसान आप खुद ही जानते पहचान हैं लेता कौन है सा कि दौर इंसान चल रहा मुस्लिम है? है कि क्या है, उससे खुद ही पहचान लेता है उसमें। जी इस्लामी जी, अब स्कॉलर ये है कि साहब, अगर किसी, अब इस्लाम तो एक बहुत वसी मैदान है ना, अब उसमें अगर कोई हुज्जत वाली बात है, हुज्जत पसंदी है, तो वो तो मैदान तो बहुत वसी है, करता ही रहेगा। जी, तो बहरहाल हुज्जत, लेकिन हम तो ये नहीं इरशाद समझते कोई साहब, किसी, इसलिए कि हम भी जो है अलीगढ़ में जितने स्टूडेंट हैं, मुफ्ती हैं मौलवी साहब हैं। मैं उसका मेंबर हूँ, लेकिन इस तरह की बातें तो नहीं है। लेकिन आपकी वीडियो में जो है बहुत ऐसी बात भी है जो सुना तो खैर, इससे जो है मतलब ये कि आदमी अगर कुछ हासिल तो भाई जो अच्छी चीज हो तो खैर हासिल कर लेगा आदमी, अगर उसका दिमाग बहुत वसी है। लेकिन कुछ रॉन्ग भी चीजें आती हैं, वो सही नहीं है, समझ रहे हैं ना? कौन सी वाली तो चीजें सही नहीं है, जरा एक चीज बताइए। अरे जैसे आप आपके कुछ लहजा भी इसमें जो है बहुत रॉन्ग लहजा है। तो वो जो अगर मान लीजिए कोई सुनना चाहेगा, उससे कुछ हासिल करना चाहेगा, तो अगर कोई पढ़ा लिखा है तो ठीक है, वो तो उस पर गौर कर लेगा, उसको जो तनकीदी नजरिए से देख के जो चीज सही है उसको हासिल कर लेगा, जो गलत चीज उसको हटा देगा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि ऐसा आदमी है जो कम शऊरी इल्म है, या उसका इल्म से थोड़ा जो है ज्यादा गहरा ताल्लुक नहीं है, तो उसको वो गलत मोटिवेट लेगा, गलत उससे जो वो ले लेगा, मैसेज लेगा, फिर उसको जो है वो बयान करेगा, तो उससे हुज्जत होगी, बहस होगी, और वो हासिल रहेगा, कुछ उससे हासिल होगा नहीं। तो ये है कहने का मतलब है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस नाचीज की गुफ्तगू सुनी जाती है, समझे हजरत? सऊदी अरब, दुबई, कतर, ओमान, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, मतलब उतनी जगहों के नाम तो मुझे भी याद नहीं है जहाँ जहाँ से कॉल आता रहता है, जहाँ से दुबई है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मुसलमान तौबा कर रहे हैं, रुजू कर रहे हैं। पहले जो वहाबियों देवबंदियों के साथ उठते थे, बैठते थे, खाना पीना करते थे, काम करते थे, वो सब उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया। उन लोगों के साथ उठना बैठना खत्म, उनके साथ खाना पीना खत्म, समझे? और यहाँ तक बात है, यहाँ तक मुझे बताते हैं कि उठना बैठना तो दूर की बात, खाना खाना तो दूर की बात, हम उनका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते जो गुस्ताखे रसूल है, जो हमारे नबी के दुश्मनों के साथ रहते हैं या हमारे नबी के कमाल का इनकार करते हैं। जी, आप तो अच्छे स्कॉलर हैं, फिर भी आप मतलब बात नहीं समझ पा रहे हैं। बात क्या समझे, उसमें समझने वाली क्या चीज है? कुछ समझने आप वाली चीज स्कॉलर है हैं तो तो आप समझा बोलते होंगे ना, मतलब कुछ बोलते होंगे ना वहाँ। हाँ, तो स्कॉलर हैं जो कहा ना हमने, हम जो बातें करते हैं वो समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, एजुकेशन में समाज कैसे आगे बढ़ा। देखिए समाज को ही आगे बढ़ाओगे कि दीन को भी आगे बढ़ाओगे, ईमान की भी कुछ हिफाजत करोगे? हाँ, तो दीन अव्वल है ना, तो दीन अव्वल है तो पहले ईमान को बचाना पड़ेगा। हाँ, तो आपको दीन को लेके फिर सारी चीजें आगे बढ़ती है ना। अच्छा, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह को आप क्या मानते हैं? आला हजरत जी क्या मानते हैं जी। अब ये कैसे हम बताने क्या अब जो किताबों में जो हम अपने हम जो अपने हिसाब से मुताला करते हैं किताबें, हम कहा ना कि समाजी उलूम के लिहाज से हम किताबों मुताला करते हैं। अभी सबको मानना ना मानना, इसको मान लेने से हमारा क्या हो जाएगा? आप मुफ्ती साहब हैं कि मौलवी साहब हैं? फिर मुफ्ती हूँ ना मौलवी, मैंने कहा मैं एक स्कॉलर हूँ ये इस्लामिक स्टडीज का। जी, तो उसी मैं इदारा तहक़ीक़ तस्नीफ़, वहाँ हमने जो एक कोर्स किया है, मुहक़्क़िक़ कोर्स होता है, वो तो उर्दू लिटरेचर में होती है, उसको मैंने स्टडीज किया है, उर्दू और अंग्रेजी मिला के। जी, तो अभी तो अलीगढ़ में मेरा जो है मैंने जो है
2018 में जो है हमने जो है GRF क्वालिफाई किया था, और इस वक्त जो है मेरा वो स्कॉलर का जो है तीसरा साल है रनिंग है जी। अच्छा। तो हम जो है ये है कि हम लोग एक जमा, हमारी ईसाई एक जमात, उससे हम लोग भी इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस तरह मतलब बातों में वो चीजें नहीं हमारे देते हैं अपनी बातों में कि उसको दूसरी कौम जो है उसको तकलीफ पहुंचे। तो तकलीफ दे वाली बात जहाँ जुमला होता है तो उससे हम लोग जो है उसको ज्यादा जो है आगे नहीं बढ़ने देते हैं। हम जो चीजें हैं बताने की अगली चीजें हैं। अच्छा ये बताइए समाज को कैसे आगे बढ़ाया, ये बताइए समाज को आगे बाद में बढ़ाइए। जो आपके नबी की शान में तौहीन करता है वो मुसलमान है या काफिर है? क्या चीज? जो आपके और मेरे नबी की शान में हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करता है वो मुसलमान है या काफिर है? तो भाई वो तो इसकी समझ का फेर अगर नहीं है तो हम और आप उसको इस्लाह किया जाए, उसको बताया जाए। भाई आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा ही नहीं कि उसकी समझ है और उसकी समझ है, आपसे पूछ रहा हूँ मैं तो क्या मतलब पूछने यहाँ तो हुज्जत का दरवाजा खुलता है ना भाई, तो हम वही काम नहीं करें ना कि हुज्जत का दरवाजा खुले। अब आप हमसे पूछेंगे कि कोई और बात आगे निकलेंगी तो इससे तो बहस होगा ना। तो बात हमको एक सेंस में करनी चाहिए कि जहाँ बहस हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो आप मोहब्बत करते होंगे? मोहब्बत तो करते ही है। सुभान अल्लाह। तो फिर ऐसे लोगों से बचा जाए जिनका ख्याल ये है माज़अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना गधे बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है। किससे बचना चाहिए? ऐसे लोगों से बचना चाहिए जिनका ये नजरिया, ये अकीदा है, जिनका ये गुमान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना गधे और बैल के ख्याल से बदतर है, बुरा है। तो उनका ख्याल अगर लाना है तो हमारे पास अगर इल्म है तो उस वक्त में इल्म को समझाएंगे ना, आप बताएंगे भाई। आप हुजूर का ख्याल करते हैं नमाज में कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, किस जगह पे? हाँ, किस जगह? नमाज में, ईमान में हर जगह किया जाता है भाई। जहाँ पे भाई जब उनका नाम लिया जाता है उनको दरूद भेजा जाता है, सलाम भेजा जाता है, और जो किसी मजलिस में अगर उनका नाम आ जाए तो उनको दरूद भेजा जाता है, उनका जिक्र आ जाए तो दरूद भेजा जाता है। और क्या, पूरी नमाज में ही हुजूर का ख्याल रहेगा जनाब, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि गोया तुम इस तरह नमाज पढ़ो जैसे कि तुम मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, जैसे मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। तो सहाबा इकराम ने जैसे जैसे हुजूर को देखा वैसे वैसे सहाबा ने नमाज पढ़ी। जी हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है। हुजूर ने फरमाया कि आपको नियत कैसे बांधनी है, आपको नियत बांधने के बाद हाथ कहाँ रखने हैं, कैसे रखने हैं, कितने जो है बीच का फासला रहना चाहिए, कितने उंगल का फासला रहना चाहिए आपके कदमों का, आपके पाँवों का, दोनों पैर कितने दूरी पे होना चाहिए, 4 अंगल की दूरी होनी चाहिए। फिर जब आप जो है किरात करेंगे तो कैसे करेंगे, अच्छे अंदाज में करें, अच्छे लहजे में करें, हर एक चीज बताइए। रुकू में जाना है तो किस तरह जाना है, सर और पीठ को किस तरह बराबर रखना है, ये सब हुजूर का ही तो बताया हुआ तरीका है। तो हम तो हुजूर का ख्याल जगह नहीं आएगा, बस मुझे ये बताया जाए, आएगा ना, हर जगह आएगा मोमिन को। मगर अगर मान लो कहीं नहीं लाया बंदा, कहीं नहीं लाया, वो अपने अटकल से पढ़ रहा है, ठीक है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम जरूर करेगा। हाँ करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। उनका तो नाम जहाँ जिक्र रहेगा उनका हमको जिक्र करना है। हुजूर का ख्याल आएगा तो अदब से ही आएगा। हाँ, अदब से ही आएगा, सही है बिल्कुल। मगर ये लोग कहते हैं कि बुजुर्गों की जो ताज़ीम नमाज में मलहूज होती है ये शिर्क की तरफ ले जाती है। बुजुर्ग कौन बुजुर्ग से मतलब बुजुर्ग से मुराद आपकी? जनाब रसूलुल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं कि नहीं है? हाँ, वो तो हमारे जो है जी। हाँ, तो हमको उनकी तो अकीदत करके ही चलना है ना जी। हाँ, आप ये कैसे कह रहे हैं कि कौन कौन बुजुर्ग? आप कैसे स्कॉलर बन गए? आपको किसने स्कॉलर बनाया है? हाँ, किसने आपको स्कॉलर बना दिया? स्कॉलर बनता कोई, वो तो आदमी जो है अपने इल्म से जो है अपनी कहाँ है आपके पास? मुझे तो नहीं लग रहा। तो कोई जरूरी है कि आपको लगे? हर आदमी भाई इस दुनिया में इंसान जो है सोचने का नजरिया, समझने का नजरिया सबका अलग अलग है ना। कोई जरूरी कोई है कि जो चीज आपके नजर में आ जाए कि नहीं लग रहा है तो ऐसा कोई है कि वो चीज वो नहीं है। देखिए एक बात बताऊं, आप स्कॉलर तो वाकई होंगे,
آپ اسکالر تو واقعی ہوں گے مگر سب کو ملا کے چلتے ہوں گے. ملا کہا تو ہم نے کہ جو ہے کہ جو جہاں ضرورت پڑتی ہے لوگوں کی مدد کرنے کو وہاں مدد کیا جائے, جہاں جس کی جو اینگل ہے. چلیے مجھے بہت ضرورت ہے مدد کی, میں بہت پریشانی میں چل رہا ہوں, چلیے میری مدد کیجیے. کیا مدد کریں آپ کی؟ پیسے سے پریشان ہوں. پیسے سے؟ ہاں تو ارے مدد کیجیے میری, ثواب کمائیے. تو اس کا ایک نظریہ ہے بھائی, انسان جو بھائی میں نے کھل کے بول دیا مجھے پریشانی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا بھی تو آپ اپنی ٹیم کو لے کے میری ہیلپ کیجیے. بولنے کی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے, بولنے کی صلاحیت دی, تو یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے رزق کے لیے انسان کوشش کرے. ارے بھائی آپ کو ثواب چاہیے نا, آپ کو ثواب چاہیے نا, ثواب چاہیے تو آپ میری مدد کیجیے. میں پریشان حال ہوں, آپ میری مدد کیجیے. تو یہ بھی تو ایک طرح کی مدد ہے نا, ہم آپ کو ذریعہ بتا رہے ہیں کہ انسان جو اپنے کی جو ہے علم کے لیے جو ہے اس کی رزق کے لیے انسان کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کوشش تو میں کر ہی رہا ہوں, کوشش تو الحمدللہ میں کر ہی رہا ہوں. تو انشاءاللہ آپ جو کام آپ کر نہیں سکتے وہ کام بار بار زبان پہ کیوں لا رہے ہیں آپ؟ کس نے آپ کو اسکالر بنایا ہے یار؟ یہ کر نہیں سکتے ہیں. ہم نے بھائی آپ نے کہا کہ کسی کی مدد کرنا بھی ثواب ہے, کسی کو ایسے کرنا بھی ثواب ہے, کسی کو پانی پلانا بھی ثواب ہے. ارے یار تو میں پریشان حال ہوں, آپ میری مدد کر دیجئے. تو یہ تو آپ کو راستہ بتانا بھی 10,000-20,000 روپے سے میری مدد کر دیجیے, بات ختم ہو گئی. نہیں تو آپ نے کہا کہ جو ہماری مدد کر دی ہے تو آپ کو ہم نے راستہ بتایا نا, تو راستہ بتانا بھی ایک طرح کی مدد ہے نا. اس کو مدد میں نہیں مانتے, مدد کا حصہ نہیں مانتے ہیں کیا آپ؟ جناب میں بھی الحمدللہ لوگوں کی مدد کرتا ہوں, میں بھی جہنم کے راستے سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں. میں بھی بولتا ہوں کہ جہنمیوں کے ساتھ مت رہو, اور آپ کو برا لگتا ہے. مفتی ہارون ندوی کا برا حال کر دیا تھا میں نے. وہ بول رہا تھا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ہے میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں. فون کاٹ کے بھاگ گیا تھا وہ, آپ نے شاید آڈیو سنی ہوگی اس کی. مفتی ہارون ندوی جو کہہ رہا تھا کہ میں فلاں پیپر کا مالک ہوں اور فلاں پریس کا مالک ہوں اور فلاں یونیورسٹی کا مالک ہوں, بہت لمبی چھوڑ رہا تھا. اچھا ہاں سنی ہوگی آڈیو آپ نے. وہ آپ کا یا تو ساتھی ہوگا یا پرنسپل ہوگا یا استاد ہوگا یا جو بھی, بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہو گئی وہ, کیونکہ آپ جانتے ہوں گے وہ اس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہی نام لیا تھا. کہہ رہا تھا کہ میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں وہاں پہ. جانتے ہو اللہ جانے ندوی کو؟ جانتا, نام تو ان کو سنا ہوا ہوں, لیکن اس وقت وہ شاید. ارے تو یار آپ بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسکالر ہیں, اور وہ بھی مسلم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو ہے وہ پرنسپل اور پتہ نہیں استاد ہے, کتنا بڑا استاد ہے, وہ ڈاکٹروں کو وہاں درس دیتا ہے, پڑھاتا ہے. آپ ایسے بندے کو نہیں جانتے جو آپ کا وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ. ابھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی صرف چھوٹا سا مدرسہ ہے, کوئی کالج نہیں نہ ہوتا ہے. وہ تو کم سے کم 20 کلومیٹر اس میں پھیلا ہوا ہے. تو وہ الگ ڈپارٹمنٹ میں ہے. کیا کریں, ہم نے ان کا نام بھی سنا ہے وہ. اب لیکن جو ہے اب یہ کہ سب سے ملاقات نہیں ہے, لیکن ہم کو ان کو جانتے ہیں, یہ نہیں کریں نہیں جانتے ہیں جی. تو ان شاید عربی کے ڈپارٹمنٹ کے ہیں کہیں تو اسکالر جی, عربی ڈپارٹمنٹ. وہ دو ساتھ میں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں. ڈاکٹر کو پڑھاتے ہیں, کس کو پڑھاتے ہیں, وہ تو کہ آپ سے بولے ہوں یا کتنی سچائی ہے تو اس کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں. تو آپ سے بات ہوئی, آپ ہی زیادہ بہتر جانیں گے جی. لیکن بات ادھر یہی کہ جو انسان جہاں اصلاح کرنی ہے تو وہ ابھی جو سچائی ہے وہ تو سب کو بتائے گا نا. آپ کو بتائے گا, ہم کو بھی بتائے گا, اس میں تو کوئی بات ہے نہیں. بھائی جان ایک بات کہوں اسکالر صاحب؟ جی بولیے. دیکھیے اپنے ایمان کو بچائیے, ایسے لوگوں سے بچیے جو آپ کے اور میرے نبی کے دشمن ہیں, جو میرے اور آپ کے نبی کے کمال کو گھٹاتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بتاتے ہیں, جو رسول پاک کے کسی کمال کو تسلیم نہیں کرتے اور حضور کے کمال کو گھٹانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ بچیے, دور رہیے. تو ایسے لوگوں ان کو بتایا جائے, سکھایا جائے نا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, پہلے آپ سمجھ جائیے, پھر دوسرے لوگوں کو آپ سمجھائیے. آپ تو اسکالر ہیں.
बिल्कुल हम समझाएंगे, लेकिन हम तो भाई इसीलिए तो आपका हमने ये वीडियो देखा है, वीडियो देखने के बाद हमने सोचा आपसे कुछ गुफ्तगू किया जाए, इसीलिए तो अच्छा तो कि भाई हम भी आपसे कम से कम कुछ सीखें, हमारे अंदर भी कुछ आए, सारी चीजें नॉलेज हो। तो इंसान को एक दूसरे से हमेशा पूरी जिंदगी 70-80 साल की जो जिंदगी मिली है सिर्फ सीखने के लिए मिली है ना, सीखने और सिखाने के लिए। मेरी जो आदत है, हाँ इरशाद भाई, मेरी जो आदत है जी तो आदत नहीं, मैं सीधा सीधा सिंपल बोलता हूँ, शॉर्टकट में आपको मैं समझाता हूँ। देवबंद के 4 काफिर पक्के काफिर, देवबंदियों के मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने कुफ्र किया। वो तो मतलब ये जो आपने बात कहा उससे हम कह रहे हैं, जो अभी आपने बात कहा कि जो है आप समझ जाइए, और जो इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका नजरिया जो है ना, बचने की क्या जरूरत है? हम बचेंगे तो उनकी इस्लाह कैसे होगी? फिर अल्लाह ताला ने हमको जो इल्म दिया है उसकी पूछताछ करेंगे ना। अल्लाह ताला कहेगा हमने आपको इल्म दिया था कि आप जो गुस्ताख रसूल थे उनको आपने क्यों नहीं सिखाया? आप बोलने की सलाहियत दी थी, दानाई दी थी, तो अगर उनको हम नहीं समझाएंगे, अगर वो जाहिलियत की ढक्कन में डूबे रहेंगे तो हमको जो है उनको समझाना भी तो जरूरी है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। जो काम मैं कर रहा हूँ वही आप नहीं समझाएंगे तो उसकी हमारे लिए पकड़ भी हो जाएगी। अरे जनाब मैं भी तो वही कर रहा हूँ जनाब, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। आपने वही कीजिए, गलत कहा है पहले। नहीं आप एक मिनट, आप मसला के आला हजरत पर गामजन है क्या? आप मसला के आला हजरत को फॉलो करते हैं क्या? बोलिए। थानवी ननौतवी हमीद भी गंगोही को काफिर मानते हैं क्या? बोलिए आप। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने समाज की नौतविया में भी गंगोही को काफिर मानते हैं? बोलिए, अभी मैं समझ लूंगा 1 मिनट में। बोलिए। हम आपको पहले मानते हैं स्कॉलर साहब? नहीं देखिए भाई कुछ नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैंने जो बोला है 100% मैंने सही बोला है। आप बस मुझे इतना बता दीजिए, मौलवी रशीद अहमद गंगोही को काफिर मानते हैं या मुसलमान? तो आप सही बोल रहे हैं तो हमने आपको गलत भी नहीं कहा ना। अरे भैया तो आप कह रहे हैं कि आपने कह दिया कि अलग हो जाइए, मैंने बिल्कुल सही कहा है। तो हमने आपकी बात को रद्द कोई किया, आपकी बात की तारीफ की है ना। तो हम समझाएंगे कैसे भाईजान? मैं भी समझा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह राह रास्त पर आ रहे हैं। उसमें नेगेटिव नहीं होना, उसमें जो है हाइपर नहीं होना, अग्रेसिव नहीं होना। तो बस अभी अपनी जिंदगी जो है, पूरी जिंदगी 60 साल की पूरी जिंदगी जो है लोगों को समझाने में, इस्लाही में लगा दी है। बल्कि कुरान में जितनी सारी चीजें हैं, कुरान में जितनी आयतें हैं, बहुत सारी आयतों से ये सारी में पूरी जिंदगी जो है अपनी उम्मत की कुर्बान कर दी, समझ लीजिए। रसूलुल्लाह ने इतना कुछ कुर्बान किया है, जब आपके लिए रसूलुल्लाह ने इतना कुछ कुर्बान किया है, आपके लिए इतनी फिक्र की है, तो आप रसूलुल्लाह की जो है फिक्र नहीं कर सकते कि रसूलुल्लाह जो लोग मिटा रहे हैं? खामोश है ये थोड़ा सा स्कॉलर साहब। जी बोलिए। समझने की सलाहियत रखें, क्योंकि आपकी बात को भी अगर लोग नहीं सुनेंगे तो आपको बुरा लगेगा। जैसे कि आपने रसूलुल्लाह ने हमारी इतनी फिक्र की है, और है ना, तो आप भी फिक्र कीजिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और रसूल पाक के दीन की। जी बिल्कुल फिक्र कर रहे हैं। जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मिटाने के चक्कर में लगे हैं, जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को घटाने के चक्कर में लगे हैं, जो लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, समझे? तो ऐसे लोगों को आप समझाइए, बताइए, सुधारिए, और जो अवाम अहले सुन्नत है उसको भी रोकिए कि इन लोगों के पीछे मत पड़ो। जो जमात वाले आते हैं, जमात में कभी मत जाओ, क्योंकि जमात वालों की नमाज नहीं होती। जमात वालों की नमाज इसलिए नहीं होती कि उनका नजरिया, उनका अकीदा यही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल नमाज में लाना गधे बैल के ख्याल से बदतर बताते हैं वो लोग। उनकी किताब में लिखा है, किताब का नाम है सिरात मुस्तकीम। हाँ, इन लोगों का नजरिया है माज़अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया ऐसा फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ माज़अल्लाह। तो सभी मिलने वाले क्या माज़अल्लाह आपका रसूलुल्लाह के लिए यही नजरिया, यही अकीदा है? एक मिनट, क्या रसूलुल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए आपके नजदीक? हमने ये कहा था। अरे आप मतलब आपने ये कहा कि सभी मिलने वाले हैं, तो बताइए। सुनिए मतलब स्कॉलर साहब आपकी सामने हम आपकी कई बात हम कि जो मौजूद हो रहा है आप उससे समझ रहे हैं
और दूसरी बातें शुरू कर दे रहा है। एक बात आपने कहा कि हम आप जो है समझ जाइए और लोग जो इनसे बचिए। वही तो समझा रहा हूँ। तुम वहाबी देवबंदी को भी मुसलमान मानते हो, जो देवबंद के चार पक्के काफिर हैं, उनके कुफ्र में जो शक करे वो भी हमने काफिर है। देवबंदी बरेली, हमने आपसे बात स्टार्टिंग में शुरू की बरेली की बात की, मैं उसी से मोहब्बत करता हूँ, उसी से सही बात करता हूँ जो मेरे नबी का गुलाम है। आप सिर्फ अकेले मोहब्बत करेंगे, जो भटके हैं उनको इस्लाह भी तो आप करेंगे। उसकी बिल्कुल इंशाल्लाह वही तो काम कर रहा हूँ मैं, आपकी भी इस्लाह करना चाह रहा हूँ। आप इस्लाह कराना कब चाह रहे हैं? आप तो अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर भी समझ रहे हैं। मतलब हम तो आपकी बात की तारीफ नहीं कर रहे, हम आपकी बात की जो है नफी नहीं कर रहे हैं ना, आपकी बात की नफी तो कर नहीं रहे हैं हम तो आपकी बात की तारीफ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सही बात की सच्ची बात की नफी हो ही नहीं सकती। और करोगे तो आपको लोग बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि मेरे पास ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, वो रिकॉर्ड एक अलग बात है। जो भाई हम आपसे जो फोन किए हैं तो आपकी बातें देखा, आपकी बातें सुना, उसमें जो है कुछ बातों का देने भी लोगों का है और कुछ बातों का जो है उसकी पॉजिटिव भी है। दोनों चीजें हैं, हर एक बात का दो पहलू होता है। अच्छा, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। मेरी बातों में कौन सी बात नेगेटिव है वो बात दिखाइए। मैंने कौन सी बात नेगेटिव बोली है? हमने आपको पहले बताया क्या कि जब आदमी बात करता है तो बात करते करते जो है जब गिरफ्ती हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, तो उससे जो है बात तकलीफ नहीं होती है। अरे यार वो तो एक जब बात नहीं हुई भाई गुस्से की बात की नहीं जाता इंसान को। भाई हमें रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, कोई रसूलुल्लाह का दुश्मन अगर हमारे सामने कोई हमारे नबी की जो है शान को घटाएगा, हमारे नबी के कमाल को जो है तस्लीम नहीं करता है, हमारे नबी के कमाल को ऐसा पेश करता है जैसे कि ऐरे गहरे नत्थु खैरे की बात को पेश करते हैं, तो यार हमें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हमारे नबी के किसी कमाल का इनकार करता है, हमारे नबी के कमाल का इनकार करेगा और हमसे भी जो है माज़अल्लाह इनकार कराने की कोशिश करेगा, तो गुस्सा नहीं आएगा? आप बताइए। मैं आपके वालिदैन को बुरा भला कहूँ तो आप सुनेंगे क्या? बिल्कुल सुनेंगे इसलिए कि अगर मोहब्बत ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है जनाब। अगर मैं आपके वालिद को बुरा भला कहूँ और आपने कहा कि हाँ बिल्कुल सुनेंगे, तो फिर आपको अपने वालिद से मोहब्बत नहीं है। तो बिल्कुल सुना नहीं, हमने बिल्कुल कहने का मतलब इसकी भी तो इससे भी तो स्कॉलर बनाया यार। स्कॉलर साहब क्या बोलते हो यार? स्पीच पे क्या बोलते हो? क्या स्पीच देते हो यार? क्या स्पीच देते हो? आपने ये भी तो कहा ना कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नहीं मानता है वो इनकार कर रहा है, तो उसकी हमें इस्लाह करनी है, इस्लाह नहीं करेंगे इसकी। अरे भाई मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ, आप इस्लाह नहीं समझ रहे हैं। ये भी इस्लाह हो रही है, हम तो आपकी बात समझना नहीं चाह रहे। तो आपकी इस्लाह की बात तो हम मान रहे हैं ना, हम आपकी बात इनकार नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन आपने मान के भी कौन सी दी है यार? आपने मान के एक बताइए मेरी, कौन सी बात को आपने माना है? आपने कहा कि आपने मुझे पहले मोहब्बत करते, हमने कहा बिल्कुल मोहब्बत करते, क्यों नहीं मोहब्बत करेंगे? ऐसा दावा तो सब करते हैं, ऐसा दावा तो वहाबी देवबंदी हर एक करता है। अब हर बात तो वहाबी देवबंदी में क्या जनरल स्कॉलर की बात कीजिए ना, देवबंदी बरेली के खोल में क्यों जाते हैं? अरे मैं तो इन्हीं का करता हूँ ना। अरे आप मेरे पास जो कॉल करने आए किस वजह से आए? किसी वहाबी देवबंदी की कॉल ही सुनी थी ना आपने? सुना था तो मतलब तो फिर वहाबी देवबंदी की सुनी थी ना, तो मैं तो यही करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मोमिन भाइयों को बचा रहा हूँ। आप जाना दूसरे की, देखिए हर एक इंसान, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस चीज की गुफ्तगू करते हैं जब कहीं जो चीज देते हैं। हम किसी हुज्जत वाली गुफ्तगू नहीं करते। क्यों नहीं करते? आप हुज्जत, अच्छा ये बताइए, पसंदी वाली जो बात आती है, अच्छा एक मिनट, आदमी कौन में ये भी कहा गया है ना, एक मिनट हुज्जत मत कीजिए किसी बात को। जहाँ हुज्जत हो तो उसको जो हट जाइए, तो दूसरा आदमी अपना कोई बदल पैदा कर दीजिए, अपने बदल के जरिए उसको समझाइए। आपने हमेशा हमारी सुनिए, बोलिए दोनों पेटी। आप बोलेंगे तो हमारे पास नहीं मिल जाएगी, और हम बोलेंगे तो आपको बात नहीं आएगी। वही भी डिस्कस करने का तरीका है कि आप बोल रहे तो हम सुन लें, हम बोले तो आप सुन लें। आप एक बात बोलें तो जो फिर इसमें आप उसमें बहस करने लगे तो आपको ही हमारी बात समझ में नहीं आएगी। तो हमारी बात कब तक पूरी हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप बोलिए, आपकी बात भी हम सुनेंगे, और फिर उसके बाद जो है आंसर बाद में नहीं देंगे, फिर आपका जो आंसर है वो आप दीजिएगा, फिर उसमें जो रद्द अमल होगा आप उसमें इज्जत कीजिएगा, फिर हमारा जो रद्द अमल होगा हम इज्जत करेंगे।
ये तरीका होता है बात करने का ना। तो आप ये कह रहे थे कि जो है कि जो सुप्रीम को जो मुनकर हो तो जो है उसको ऐसा होना चाहिए, उसको उससे नहीं बोलना चाहिए, उससे दूरी बनाना चाहिए। भाई उसकी इस्लाह भी तो करनी चाहिए ना। इस्लाह कौन करेगा? इस्लाह के लिए तो इसीलिए तो हमारे मदारिस बने हैं, हमारे मकातिब बने हैं कि जो गैर शऊरी लोग उनकी इस्लाह किया जाए। वो भी तो जरूरी है। इस्लाह नहीं करेंगे तो हमारा हिसाब किताब होगा। और अल्लाह ताला कौन में आप तो खैर आलिम है, आपसे हम कुरान की आयत क्या पेश करें, फमैया अमल मिस्काल जर्रा बराबर भी देना जो करेगा वो भी देखेगा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देखेगा। तो मतलब इतना कहे कि उनसे नहीं बोलो, इनसे नहीं बोलो, तो ये हमारे फर्ज अदा नहीं हो जाएगा। फर्ज की अदायगी तो हमें करनी है किसी भी हाल में। हाँ, तो कुछ लोग होते हैं स्कॉलर किसने बनाया है यार? आपको स्कॉलर किसने बनाया है? आपको स्कॉलर बनाया किसने? पहले तो ये बताइए। इस मौजूद पे बात ही नहीं है, इस मौजूद पे बात ही नहीं है। देखिए कोई बनाता पहले वहाबी देवबंदी का और अहले सुन्नत वल जमात का फर्क समझना चाहिए। मैंने अकीदा अपनाने को मना किया कि वहाबियों देवबंदियों का अकीदा मत अपनाओ। उसको मैंने बोला है कि वहाबियों देवबंदियों के साथ मत रहो। आई समझ में? सोहबत से बड़ा असर पड़ता है, जानते हैं स्कॉलर साहब? इस बीच में बोला होगा कभी न कभी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लाता है। कभी न कभी बोला होगा आपने स्पीच में। जब आप स्कॉलर हो तो जरूर बोला होगा। सुनिए, खामोश रहिए, इतनी देर मैंने आपकी बात सुनी है। जी हाँ, लोहार के पास बैठने वाले के कपड़ों पर दाग जरूर लग जाता है, चाहे वो काम करे या ना करे। इतर वाले के पास बैठने वाले के कपड़ों में खुशबू जरूर आ जाती है, चाहे वो इतर लगाए या ना लगाए। समझे? इसी तरह गुस्ताखे रसूल के पास बैठेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई बदअकीदगी जरूर आ जाएगी, जिससे कि उसका ईमान बर्बाद हो सकता है। समझे जनाब स्कॉलर साहब? आप बोलिए, हम आपकी बात में नहीं बोलेंगे, पूरी बात सुन के बोलेंगे। हमारे इस बात को मैंने कहा कि वहाबियों देवबंदियों के जो नापाक अकीदे हैं उनसे बचिए। वहाबियों देवबंदियों के जो गंदे और नापाक घिनौने जो इनके नजरिए और अकीदे हैं, जो इन्होंने गड़े हुए हैं, उन अकीदों से आप पाक व साफ रहिए। उस चीज को मैंने बोला है, ना कि मैंने ये कहा कि इनकी जो है इस्लाह मत करो। इस्लाह तो मैं तुम्हारी कर रहा हूं, तुम इस्लाह कराना नहीं चाह रहे हो, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और तुम बार बार वही कह रहे हो कि ये क्या वहाबी देवबंदी है, ये क्या वहाबी देवबंदी है। अरे पहले वहाबी देवबंदी का फर्क समझो कि क्या है क्या। समझे जनाब? ये वहाबी देवबंदी वो गुस्ताखे रसूल है, वो गुस्ताखे रसूल है कि जो गैर मुस्लिमों से भी ज्यादा सख्त अजाब मिलेगा इसको। गैर मुस्लिम जो है वो हमारे नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, उसको मालूम ही नहीं है कि इस्लाम है क्या, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत है क्या, नहीं मालूम है। मगर ये वहाबी देवबंदी ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हुए भी, हुजूर का कलमा पढ़ के, दीन इस्लाम की शान व अज़मत को जान के, फिर भी ये हमारे नबी के जो है कमाल का इनकार करते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत को तस्लीम नहीं करते, हमारे नबी के कमाल का जो है एकदम इनकार कर देते हैं। मगर जिन जिन कमालों का इनकार करते हैं वही सारे कमाल अपने घर के बुजुर्गों के लिए तस्लीम करते हैं। ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल नहीं है, ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इख्तियार नहीं है, ये कहते हैं माज़अल्लाह के खुदा झूठ बोल सकता है, जो काम बंदे कर सकते हैं वो सब माज़अल्लाह खुदा भी कर सकता है। अरे ये मुसलमानों का अकीदा है, ये कुरान का दिया हुआ अकीदा है, ये सब कुरान के खिलाफ है। ये कहते हैं नबी के बाद कोई दूसरा नबी पैदा हो फिर भी खतमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा माज़अल्लाह। ये देवबंदियों का अकीदा है माज़अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी कोई और रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है माज़अल्लाह। तो क्या ये सब आपके नजरिए हैं, ये सब आपके अकीदे हैं? बताइए स्कॉलर साहब। बोलिए, अब आपकी बात तो तकलीफ है तब हम बोलेंगे। बोलने के लिए तो और बहुत कुछ है, मगर सिर्फ एक छोटा सा मैंने आपको एक नमूना दिया है। ये जो मैंने बहुत कुछ बता सकता हूँ, बस ये थोड़ा सा जो मैंने आपको ये निशाना दिया है जरा। अच्छा, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहे कि हुजूर के बाद, ठीक है, यानी आपके अब विसाल के बाद अब इस टाइम कोई नबी पैदा हो गया, ठीक है, समझे, नबी पैदा हो जाए, फिर भी खातमत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क नहीं आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा, और जमाने के एतबार से हुजूर की कोई फजीलत नहीं माज़अल्लाह। हुजूर को आखिरी नबी मानना ये अवाम का ख्याल है माज़अल्लाह। क्या ये मुसलमानों का नजरिया है, मुसलमानों का अकीदा है? इसको समझाया जाएगा ना, इस्लाह की जाएगी ना अगर ऐसा। बिल्कुल इस्लाह की जाएगी। मैं आपकी इस्लाह कर रहा हूँ, आप पहले समझ लीजिए। आप खाली हमारी
पहले आप समझ जाएंगे फिर आप बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों को समझा देंगे। बिल्कुल समझा देंगे। जी जी जी, इसीलिए पहले मैं आपकी सलाह कर रहा हूँ ताकि मेरे स्कॉलर इरशाद भाई को अगर समझ आ गया तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी बड़ी स्पीच पे खड़े होते हैं, माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट को जो है सुधार देंगे। जी, मेरी नेक नियत यही है कि पहले आप समझ जाइए फिर इंशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंटों को आप समझा देंगे। वही तो कितना बड़ा इंसान जो है पर आलिम हो जाए, कितने बड़ा इल्म हो जाए, कितना बड़ा भी जो है उसके अंदर जो है नॉलेज पर्सन हो जाए, तो अब तो ये अपने आप को बहुत बड़ा नहीं, अपने वो एक तरह से वो जो है वो अब नहीं है दूसरे जितने जिसके नजरिए में वो पढ़ा है, जिसके ज़ेरे साये में वो पढ़ा बढ़ा है, जो उसके उस्ताद हैं, टीचर हैं, तो उसको वो छोटा ही है, तब भी बहुत बड़ा नहीं होगा उसके। वो बात कहेगा तब भी हमें उसकी बात मानी है। कितने लोग थोड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, कुछ चीजें जान लेते हैं, कुछ अरबी किताबें मुताला कर लेते हैं, तो वो उसी पे जो है अपने मसले मसाइल का वो अंबार लगाते हैं और वो बात से हुज्जत करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं बजाय हुज्जत करना तो आप सीख गए, चलिए इससे हुज्जत से बेहतर है कि उसकी इस्लाह किया जाए ना। हुज्जत से भी इल्म बढ़ता है, इल्म में इजाफा होता है। हाँ, तो इल्म तो इजाफा होता है, लेकिन ऐसे लोग जो है जो इल्म दीन का जिनके अंदर मुताला नहीं है, किताबों का मुताला नहीं है, तो उनसे हम हुज्जत करेंगे तो सवाल जो है नहीं के वक्त का कुछ नहीं मिलेगा ना। इरशाद भाई, ये जो लोग है ना वहाबी देवबंदी, हाँ, ये जो वहाबी देवबंदी लोग है ना, हाँ, ये स्कूल के स्टूडेंटों को फंसाते हैं। ये उन लोगों को फंसाते हैं जो बेचारे कम इल्म है, जिनको मालूम नहीं है, इल्म नहीं है, जो बेचारे अपने कारोबार में घिरे हुए हैं, गिरफ्तार हैं। समझे भाईजान? जो काम वाले लोग हैं, जो आलिमों से दूर रहते हैं, हाँ, ये कम इल्म लोगों को तो बहकाते हैं यार स्कॉलर साहब। जी जी, तो इनकी इस्लाह करना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल इस्लाह करना चाहिए। आप देखिए इरशाद भाई, आप माशाल्लाह एक ऐसी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर हैं कि जिसका नाम हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में इल्म का काम लिया है हजरत, उसका काम है कि जो भटके हुए हैं उनको बताया जाए, जो गलत राह पे जो किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। आपसे मेरी ये तवक्को है, मेरी उम्मीद है कि शायद आप भी अपने स्टूडेंटों को, अपने स्कूल के, अपने यूनिवर्सिटी के जो आपके स्टूडेंट हैं, तालिबे इल्म हैं, आप उनको भी जो है ये सबक पढ़ाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। शायद आप करें इस काम को, अगर आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो। हर वो काम करता हूँ जिससे दूसरों की इस्लाह हो और जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो एक बात बताइए, उसको इल्मी गुफ्तगू करता हूँ, ज़बान से भी, और उसकी तहरीरी गुफ्तगू भी करता हूँ। उसकी तहरीरी गुफ्तगू, खाली इल्मी गुफ्तगू नहीं करता हूँ, तहरीरी गुफ्तगू भी करता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत दिल खुश हुआ इरशाद भाई आपकी ये गुफ्तगू सुनकर कि आप तकरीरी और तहरीरी दोनों गुफ्तगू करते हैं, दोनों काम कर रहे हैं। और हमारे मज़ामीन भी आप शायद पढ़े हैं, नहीं है, इरशाद के नाम से करते हैं जी। डॉक्टर आप मुझे भेज दीजिएगा। अच्छा, एक मिनट, एक बात और बता दीजिए मुझे जी। अब यहाँ ईमान को रख के मैं आपसे बोलूंगा, आप ईमानदारी के साथ बोलिएगा। दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो किसी न किसी जमात से जुड़ा ना हो। आप किस जमात से जुड़े हैं? आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, कादियानी हैं, किस या मिनहाजी हैं, किस जमात से जुड़े हैं वो आप मुझे बता दीजिए ईमानदारी के साथ। ईमान से बढ़ के कुछ नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा एक बात, आपने नहीं गौर किया शायद। देखिए, मैंने वो सब सुन लिया, मगर मैं एक बात, ये कड़वी सच्ची बात कह दूं कि कोई बंदा, कोई भी हो, ठीक है, किसी ना किसी जमात से जरूर जुड़ा रहता है। और ये तो मतलब दीन का काम तो दीन का, दुनियावी आदमी भी है ना, दुनियावी तो किसी न किसी सियासी पार्टी से जरूर जुड़ा रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, कोई बंदा खाली नहीं है, एक तरफ जरूर होता है कहीं। का मेंबर हूँ, एसआईओ यूनिट चलती है हमारे अलीगढ़ में, एसआईओ यूनिट चलती है, एसआईओ। अब मैं समझ गया, अबुल आला मौदूदी की जमात से जुड़े हुए हैं, जमात इस्लामी से, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जमात इस्लामी से जुड़े हैं ना, जो अबुल आला मौदूदी ने बनाई है। जी, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। मैं जो कह रहा हूँ पहले उसका जवाब दे दीजिए। उसी का जवाब तो दे रहा हूँ, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मैं समझ गया, हमने कहा खुल के बताइए मुझे, खुल के बताइए। अब आपके अभी कहिए कि आपके सिर्फ में हम जवाब दें तो वो एक अलग बात हो गई। आप एकदम सिर्फ में आपके जवाब नहीं देंगे ना कि आप मैं तो समझ गया, मैं तो समझ गया, मगर मैं कुछ और चाह रहा हूँ ना आपसे।
हाँ, मैं क्या कह कह रहे रहा हैं, बोलिए हूँ जैसे जमात इस्लामी है, जी जी। जमात इस्लामी जमात से जुड़े हैं ना आप? हाँ हाँ जुड़े हैं, वही तो बताया ना। अच्छा, इसका बानी कौन है? मौलाना अबुल आला मौदूदी है ना? हाँ मौजूदी है भाई, हमने कहा भाई वो ज़ी इल्म थे, उनकी किताबों का मुताला और जो भी ज़ी इल्म है, जहाँ से अच्छी चीजें मिले वहाँ से इंसान मुताला करता है। अच्छा अच्छा, उन्हीं चलिए का बहुत मतलब अच्छी ये बात कि है। अच्छा, अब उनको एक बात कहूँ मैं भाईजान इरशाद भाई, हाँ आप मुझसे उम्र में तो बहुत बड़े लग रहे हैं, मगर बस एक नहीं आपसे मैं आपको हाँ भाई, हो सकता है भाई, हमारी इस वक्त उम्र जो है 31 चल रही है, रनिंग है 31 रनिंग है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं आपको भाईजान बोल देता हूँ, मगर आपकी कितनी है जी भाई? मेरी आप तो आपसे हमसे आधी है। भाई, आप तो माशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला ने आपको जबान की फसाहत और बलागत बहुत अच्छी दी है, इसलिए मैंने देखा आपकी जबान की फसाहत और बलागत, आपका बोलने का वो लहजा, वो सेंस है। तो खैर वो सब कुछ अच्छा है आपका। बस ये मैं कहना चाहूंगा कि आप गिरेसिव मत होइए किसी भी कोई इंसान अगर आप गलत भी बोलता है तो उसको सिर्फ समझाइए, आप उसको समझा, उसको जो है अगर आपसे वो अगर आपकी बात बुरा मान जाता तो बेहतर ये है कि आप उससे गुफ्तगू ही मत कीजिए, और जो है नहीं तो अपनी जगह किसी और को बजाय कि उससे गुस्सा करने के और उससे जो है गलत गलत अल्फाज जो है निगेटिव अल्फाज बोलने के, तो इससे जो है आपकी वीडियो खाली जो है आप जो है उस पर डाल रहे हैं ना, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो इससे जो है दूसरा आदमी भी जो इल्म है वो भी सुनेगा इस वीडियो को, तो उससे वो सबको मुतासिर होगा मालूम कि है, हमारे समाज की जो एक इस्लाह पर्सन है, इस्लाह का कैंडिडेट है, जो दूसरों की इस्लाह करता है, तो उससे वो गलत मैसेज जाता है ना, ये कहने का मतलब है। तो हाँ हम गलत मैसेज से बचने की कोशिश करें ना। जी हाँ, तो जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मगर उससे करना है लेकिन मैसेज गलत जा रहा है। हाँ, तो मगर वहाबी इसलिए जो देवबंदी हम ऐसा काम ही ना करें कि जो है कि जिससे हमारा मैसेज रंग जाए, ये जो इल्मी शख्सियत है, जो वो चीज सोचे कि ये आपके हवाले से जो है, जैसे आप इल्म पर्सन है, आप ज़ी इल्म है, तो आप ही का हवाला दूसरा आदमी दे देगा, कहेगा वो तो इसी तरह की बातें करते हैं, आपको कौन से बहुत इल्म वाले हैं, तो आप तो बोल के हट गए, आप उस पर्सन के कंटेक्ट की बात की, दोनों में आपकी बहस हुई, जो भी हुई हम कहे बहुत हुज्जत भी हुई, सब कुछ हुआ है, लेकिन वहाँ से वीडियो आइडियो वायरल हो गया, तो वीडियो वायरल हुआ तो बहुत से आलिम है, बहुत से स्कॉलर हैं, वो सारी वीडियो को सुन रहे हैं, तो अगर दूसरे लोग समाज की इस्लाह करना चाह रहे हैं तो अगर कोई बात आ जाती है तो वो ये कहेंगे आपका जो जानने वाला है, आपका जो स्कॉलर है, तो बहुत सारी वीडियो हम सुनते हैं वो गाली से बात करता है, तो जब जो गिरेसिव हो जाता है, गुस्से से बात करता है, तो ये मैसेज गलत जाता है, तो इससे जो इल्मी शख्सियत मुतासिर होती है, तो इल्मी शख्सियत को मुतासिर नहीं होने देना चाहिए। हम अल्लाह ने आपको फसाहत दी है, बलागत दी है, सब कुछ दिया है, ठीक है, अच्छी आप अपनी फसाहत और बलागत का जो है परचम लहराइए, लोगों की इस्लाह कीजिए, समझाइए, बहुत अच्छा काम है भाई, इससे जो है हमारे ये हम आप जो काम कर रहे हैं जो है अकाबे रसूल वाला काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए कि उसमें गिरेसिव हो जाना, गुस्सा हो जाना, ये तो जाहिलों का काम है जी। कुरान की बहुत सी आयतें अच्छा एक मिनट, मेरी इन सख्त बातों से आपको बुरा लगा ना, और शायद बहुत सारे वहाबी देवबंदियों को भी बुरा लगता होगा, ये सच्चे दिल से बताइए आपको बुरा लगा या नहीं लगा? जो मेरी कड़वी बातें हैं, जो मेरी सख्त बातें हैं, बुरा लगा कि नहीं लगा? नहीं लगा, बुरा लगता तो हम कॉल क्यों करते आपके पास? हमने बस आपसे सोचा कि मेरी इस्लाह के लिए, मेरी इस्लाह के लिए शायद कॉल किया हो। नहीं आप देखिए, हम भी एक स्कॉलर हैं, हम भी लोगों की इस्लाह करते हैं, लोगों को जो चीजें हैं बताते हैं, तो बहुत से हमको भी ऐसे लोग मिलते हैं कि अरे आप क्या बताते हैं, और मेरे दिमाग में कई सारी बातें आ गई, कई सारे भूल गया और कई सारी याद और दोबारा से याद आ गई। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे आप बता रहे थे तो हम सुन रहे, आप बोल रहे थे तो हम सिर्फ सुन रहे थे, आप बोला नहीं हमने, हम बोल रहे हैं आप भी सुन लीजिए, फिर उसके बाद चलिए और सुनाइए, फिर आप भी बोलिए, हम भी सुनेंगे और सुनाइए। जी जी जी, और तो यही हम कह रहे हैं कि जो है होना ऐसा ही चाहिए कि कभी भी जो है हमको किसी चीज को इश्यू नहीं बना लेना चाहिए, कि वो ऐसा नहीं है कि वो हमारा आबाई झगड़ा है या वतन का झगड़ा है, कुछ से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोर्ट कचहरी है कि हमने एक वकील खड़ा किया उसमें बहस कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो कोर्ट कचहरी दुनियावी मसला है, हम आप इस्लाह के लिए बनाए गए, इस्लाह करना है तो इस्लाह का जो तरीका है, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया इस्लाह का कि नरम गुफ्तगू होनी चाहिए, लहजा अच्छा होना चाहिए, और जो है गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें होगी तो भी इरशाद भाई आपकी बात सुनकर अच्छा लगा, तो मैसेज जो है गलत जाता है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दीन फैलाया, उसमें जो है कितनी उन्होंने जो है मुसीबतें सही, कितनी बहुत सी हदीसें हैं कि जो है वो जो है कई जगह घायल हो गए, तो फिर भी जो है उन्होंने उनके लिए भी आखिरी वक्त में जब पता हो गया तब भी उन्होंने यही कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी वो ये अब यानी अगर चाहते तो अल्लाह ताला ने उनको सारी चीजें दी थी, सब कुछ
सब मलका हासिल किया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फतेह मक्के के बाद भी उन्होंने वहाँ फिर जो है जब लोगों ने उनके जो है वो थे निगेटिव पर्सन थे, जो उनको जानने वाले थे, कहा कि आज तो आपके हाथ में जो फतेह मक्के का झंडा है, आप चाहिए तो लोगों को जो है कहिए तो आपको हलाकत कर दिया जाए। तो अल्लाह तो वही आ गई, नहीं तो ये फिर बाद में ये आयत नाज़िल हुई, वमा का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, मैं तो दुनिया के लिए रहमत बना के भेजा हूँ। तो ये हमको जो है अगर हम आप अल्लाह ने वो काम लिया है तो हम उसी को जो है अपना वो बना के चले, आइडियल बना के चलें कि कुछ भी हो समाज की सुने। अब भाई अगर वो गलत बोल रहा है तो जो उसकी जो निगेटिव बात है उसको हम सुन के जो है बड़ाता कर उसकी बात सुन ले, नहीं कि उसकी निगेटिव बात उससे बहस करना शुरू कर दें। अब बहस करेंगे तो बहस से कोई पहली बात तो उसकी हम जिस मौजू के लिए गए उसकी इस्लाह करने के लिए उसकी इस्लाह नहीं होगी। सबसे पहली बात तो यही है, वो जब हुज्जत पसंद पे आ गए तो सिर्फ हुज्जत करेगा, अब उससे जो है कोई नतीजा हासिल नहीं होगा जी। तो आप जिस मकसद से गए हैं, जो टारगेट लेके गए हैं कि इसको हम समझाएंगे, उसकी इस्लाह करेंगे, मेन चीज उसी से आप पूरे रह जाएंगे। तो कहने का मतलब हम बाजार से कोई सौदा लेने गए हैं और हम जो है उस दुकान वाले से बहस करने लग गए तो वो तो नहीं तो गुस्से में भगा देगा, नहीं तो सौदा नहीं देगा। तो हम जो घर से टारगेट लेके निकले हैं कि हम तो भाई सामान लेने के लिए निकले, तो वो हमको सामान भी नहीं लेना हुआ, तो हमारा जो सब चीज जाए, वक्त भी जाए हुआ, और जो है जो सामान लेने गया वो भी नहीं हमको मिला, तो सब कुछ तो हमारा ही इसका हमारे नुकसान हुआ ना। कहने का मतलब ये है, तो हम काम ऐसे करें कि जब काम करें तो उसका हमको रिजल्ट सामने आ जाए। रिजल्ट सामने आएगा तो जो है लोग देखेंगे तो उससे जो है एक अच्छा नतीजा, पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो ये चीजें होनी चाहिए, हम ना कि खोल में बंद होके ये खोल में बंद होके जो है बस वही करना जी। हाँ चलिए बोलिए, आप बोलना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे ये सुन के, बहुत अच्छा लगा, आपके से बहुत अच्छे बोले, मगर जो सबक आपने मुझे पढ़ाया वो सबक आप खुद नहीं पढ़ते, अपने बड़ों को नहीं पढ़ाते, और जिन लोगों ने खुद हमारे नबी की शान में तौहीनें की है, हमारे रसूल की शान में बेअदबी की है, उन लोगों के साथ आप हैं। समझे भाईजान, इरशाद भाई? बोलिए। आपने मौलाना अबुल आला मौदूदी की किताब नामी पर्दा आपने पढ़ी है? जी जी, पर्दा नाम की किताब पढ़ी है? हाँ बोलिए जी, पढ़ा है क्या जी? अच्छा पढ़ी है। तो आपने एक उसमें वाकया पढ़ा होगा जिसमें अबुल आला मौदूदी ने हमारे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बड़े गलत सलत अल्फाजों से बोला है। क्या वही अल्फाज मैं आपके लिए बोलूं तो क्या अच्छे लगेंगे? जैसे मैं, आपके वालिद साहब का नाम क्या है? ये हमारे वालिद साहब अब्दुल मईद साहब है, वो इंतकाल कर गए। चलिए तो मैं उनको नहीं कहूँगा। पता नहीं वो सुन्नी सही अकीदा थे कि क्या थे, जब मैं उनके बारे में जानता ही नहीं तो मैं नहीं कह रहा। जैसे आप हैं मान लीजिए, या अबुल आला मौदूदी हैं, ठीक है, अब मैं ये कह दूं कि फला शहर का या फला जगह का व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अरे यार क्या कर दिया यार, ये क्या करा आपने? देखो मुसलमानों, किताब का नाम सुन के हवा खसक गई है। हेलो, क्या हुआ? जी बोलिए। नहीं फरमाइए। हाँ वो एक कॉल था तो मैं कॉल मेरे तरफ भी आ रहे हैं यार, मैं रिसीव नहीं कर रहा हूँ। और हाँ मैं भी रिसीव नहीं किया, मैं काट दिया। मैं कहा आपकी बात पूरी हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे उनसे। जी बोलिए। हाँ क्या फरमा रहे थे आप, बोलिए। जैसे मैं कह रहा था कि जैसे अबुल आला मौदूदी साहब हैं, और मैं कहने लगूं कि जिस शहर के अबुल आला मौदूदी हो उस शहर का नाम लेके या उनके वालिद का नाम लेके, उनके बाप का नाम लेके मैं कहने लगूं कि फला चरवाहे का बेटा या फला शहर का चरवाहा अबुल आला मौदूदी, समझे, उसने ऐसे ये कानून बनाया। तो ये जो मैंने इसको चरवाहा बोला है, ये मैंने अदब में बोला है कि बेअदबी में? बेअदबी में बोला है आपने? बेअदबी में बोला है। वाकई सही बात। चरवाहा वही कहेगा जिसको अदब नहीं होगा, जिसको मौलाना अबुल आला मौदूदी की जो है इज्जत नहीं होगी, है ना? हाँ, अगर आपको भी कोई गलत बोलता है, आपको भी अगर कोई आपका नाम लेके बोलता है कि फला चरवाहा, फला जगह का चरवाहा या फला का बेटा चरवाहा, तो ये बेअदबी का अल्फाज है, ये अदब वाला नहीं है। समझे जनाब? जी बोलिए, सुन रहे हैं आपकी बात। तो मौलाना अबुल आला मौदूदी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का अनपढ़ चरवाहा बताया है। क्या ये बेअदब अल्फाज नहीं है?
کیا یہ بے ادبی نہیں ہے ہمارے نبی کی شان میں؟ کیا یہ ہمارے نبی کی شان میں توہین نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بتایا مطلب ہم نے کہا کہ انسان کامل نہیں ہے، ہم نے ایک بات یہ کہا کہ انسان تحریری لحاظ سے گفتگو لحاظ سے کامل نہیں ہے، اس کو کامل نہیں کہا جائے گا کہیں نہ تو پھر ایسے جماعت میں ہو کیوں یار جس کی یہ تحریر کامل نہ ہو؟ یہ نہیں کہا ہم، آپ پوری بات نہیں سنتے، ادھوری بات پہ گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی آپ میری بات کا جواب نہیں دے پائے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر توہین کرے کیا وہ مسلمان رہ جاتا ہے؟ مسلمان یہ تو بہت بڑی توہین ہے، یہ تو بہت بڑی توہین ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ چرواہا بتایا ہے، معاذ اللہ ان پڑھ بھی بتایا ہے۔ ارے مولانا ابو الاعلیٰ مودودی کو مولانا کیوں کہتے ہیں لوگ؟ اس کو بھی جاہل مودودی بولیں، ان پڑھ مودودی بولیں، گوار اور چرواہا مودودی بولیں، تو آپ بھی بولیے۔ مطلب آپ لیکن اچھی بات، اچھا کام بھی تو کیا ہوگا نا، اچھائی پہ نظر ڈالیے آپ نا۔ ارشاد بھائی اسکالر بنایا کس نے آپ کو؟ آپ جو ہے پوزیٹو پہ نظر رکھیں، نگیٹو پہ نظر نہیں رکھیں، نگیٹو پہ نظر رکھیں، پوزیٹو پہ نظر نہیں رکھیں۔ ایک منٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کچھ منافقین نماز پڑھا کرتے تھے، معلوم ہے؟ جی پڑھا کرتے تھے، بالکل۔ حضور کے ساتھ جنگ بھی کرنے جاتے تھے، معلوم ہے؟ ہاں یہ بھی معلوم ہے۔ روزہ بھی رکھتے تھے، معلوم ہے؟ زکات بھی دیتے تھے، معلوم ہے؟ زکات بھی دیتے تھے، جو زکات بھی دیتے تھے، مسلمانوں جیسا لباس بھی سب کچھ کرتے تھے۔ ہاں جن کے پاس مال تھا، مال والے تھے، جو صاحب نصاب تھے، وہ زکات بھی دیتے تھے، معلوم ہے؟ مطلب اسلام کے ہر قانون کو کرتے تھے جو بھی ان پہ فالو ہوتا تھا، مگر جب حکم ہوا لیکن فلا منافق ہیں نکالو تو نکالا گیا۔ سنیے تنقیدی نظریہ نہیں نہ کرتے تھے، ان کی اصلاح بھی تو کرتے تھے۔ ارے بھائی میرے آقا تو رحمت للعالمین ہیں، میرے آقا تو رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آ گیا اور یہ ہمارے لیے قانون بن گیا، ارے سنو تو یار، رسول اللہ نے جو قانون بنا دیا، اللہ نے جو قانون بنا دیا، پھر ہم اس قانون کے الگ خلاف کریں کوئی کام؟ بتائیے، آپ بتائیے، جواب دے دیجیے۔ خلاف نہیں کریں گے ہم نے یہ نہیں کہ خلاف ہم تو وہی کر رہے ہیں نا، ہم تو وہی کر رہے ہیں، ہم تو مومن اور منافق کی پہچان کرا رہے ہیں، مومن کو الگ کر رہے ہیں، منافق کو الگ کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں شکست نہ ہو۔ ہم مومن ہوں جتنے بھی ہوں، چاہے بھلے ہی 10 ہوں، الحمدللہ دل و جان سے ہم کسی بھی کام میں ہاتھ ڈال دیں گے، ہم کامیاب نکلیں گے۔ صحیح ہے، ہاں تو وہی چیز کہہ رہے تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ارشاد صاحب، میں صرف آپ سے اصلاح کی نیت سے ہی بات کر رہا تھا جب سے اب تک، اور ابھی بھی اصلاح کی نیت سے بات کر رہا ہوں، سمجھے جناب؟ تو وہی کہنے کا مطلب ہے کہ اسکالر تو آپ بہت بڑے بن گئے اور بہت بڑی یونیورسٹی کے آپ اسکالر بھی ہیں۔ ہاں، اس کا نام جو ہے وہ شاید پورے ہندوستان میں، تو ہندوستان میں یہ دیگر جگہوں پہ بھی اس کا نام، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک اپنے آپ میں ایک شناخت ہے۔ ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی یونیورسٹی کا آپ اسکالر ہیں، پر آپ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو نہیں پہچان سکے۔ بالکل پہچان، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا۔ دیکھیے ابو الاعلیٰ مودودی نے کتاب نام پردہ، اس میں جو یہ توہین کی ہے، کیا یہ توہین نہیں ہے؟ آپ بتائیے مجھے۔ تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ توہین ہے، ہم توہین ہے تو پھر کافر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے تو رسول اللہ کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنے والا، حضور کو ذرہ برابر تکلیف دینے والا، مسلمانوں کو ذرہ برابر تکلیف دینے والا، یہ کیسا شخص ہے؟ جو آپ مجھے پاٹ پڑھا رہے تھے اسی کا میں جواب دے رہا ہوں آپ کو۔ تو آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور وہ میں سنتا چلا جا رہا تھا، اسی لیے تاکہ میں آپ کی بات کا جواب دے سکوں۔ جو پارٹ آپ ہمیں پڑھاتے ہو، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جو آپ ہمیں پڑھا رہے ہو، جو آپ ہمیں درس دے رہے ہو، وہ آپ خود کیوں نہیں کرتے؟ تو وہی تو بتا رہے ہیں، کرنا انسان جو اپنی اصلاح کرتا رہے، ایمان کو تازہ کرتا رہے، وہ تو کرنا ہی ہے انسان کے لیے۔ تو پھر ابو الاعلیٰ مودودی کو مارو ٹھوکر، کیونکہ اس نے آپ کے نبی کی شان میں توہین کی ہے، آپ کے نبی کو ان پڑھ بتایا ہے۔ ارے ہمارے نبی ہی ان پڑھ ہوتے تو پوری کائنات ان پڑھ ہوتی یار۔ تو ہم نے بھی تو اس بات کا آپ کو جواب دیا ہے نا۔
हमने तो दोनों बात कही है, मारिए बात तो ठोकर सही ना, नहीं है। आप फिर भी उसी की जमात में हैं, उसी की ठोकर बनाई हुई मारने का जमात में मतलब हैं। क्या? मतलब कोई चीज कोई है कि हम किसी चीज को उठा के फेंक दिया जाए, या वो दूसरे बिल्कुल। की नजर में यहाँ इसने फेंक दिया, ऐसा नहीं। ये चीज इससे ये मुराद नहीं ना भाई, आला अगर आदमी हजरत गलत रहमतुल्लाह अलैह की है तो चौखट पे जाके तौबा कर लीजिए, गुलामी में आ जाइए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाके। आपने डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हाँ, अच्छा। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं तो सब कुछ बेकार है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सही बात है। तो यार जो हमारे नबी को ही अनपढ़ बता बता रहा है और चरवाहा बता रहा है, वो कहाँ का मुसलमान है, कैसा मुसलमान है? ये उन काफिरों से ज्यादा बदतर है जो बेचारे गैर मुस्लिम हैं, जिन्होंने ईमान नहीं लाए, जिन्होंने कलमे का जायका ही नहीं चखा। समझे भाईजान इरशाद भाई? हाँ, तभी आपकी इस्लाह कर रहा हूँ। आप अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, समझे, आप अगर हुजूर के उम्मती हैं तो फिर थोड़ा सा होश में आइए भाईजान। मैं रोज आपसे बात करूंगा इंशाल्लाह, मैं रोज आपकी इस्लाह करूंगा इंशाल्लाह। समझे इरशाद भाई? बोलिए। हाँ, फिर दुनिया में वफादारी के चर्चे गूंजेंगे आपके, और न जाने कितने जो अनजान लोग हैं, आम लोग हैं, इंशाल्लाह न जाने कितनों की आप इस्लाह फरमा देंगे, और उन लोगों के जरिए से आपकी और मेरी मगफिरत हो सकती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, तो गुस्ताखे रसूल जो भी हो, गुस्ताखे रसूल जो भी हो, समझे भाईजान? बोलिए जी। हाँ, उससे जर्रा बराबर भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुस्ताखे रसूल को तो अल्लाह तबारक व तआला भी हिदायत अता नहीं फरमाता। समझे भाईजान? जी समझा। बोलिए। आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, भाईजान कहते हुए मुझे थोड़ा सा गलत भी फील हो रहा है कि आप बुजुर्ग आदमी हैं। कितने क्या आप 18 साल के हैं? हम बताया कि हमारे 31 रनिंग है, तो आप भी होंगे 27-28 के होंगे। कितने बोले 30? आप 31 31 आप 31 के हैं भाई जी? तो शायद मैं आपसे बड़ा भी हो सकता हूँ। इतनी लंबी गुफ्तगू हो गई इसीलिए कहा है कि जो सिर्फ बोलते नहीं जनाब, नाराज मत होइएगा। ना आपको नहीं कह रहे हैं, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं आपकी आवाज भी समझ में नहीं आई थी। अलीगढ़ में भी लोग, हमारे स्कॉलर बहुत सारे लोग आते हैं, इल्मी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की ये आदत है, बोलते बहुत ज्यादा हैं, समझते कम है। ये हमारी उम्मत, ये हमारी इल्म में भी ये चीजें पाई जाती हैं। मैं बोलता भी बराबर हूँ, समझता भी बराबर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी। 31 आप अभी कह रहे बहुत बड़े हैं। नहीं जनाब, बता दिया उस टाइम पे आपकी आवाज ही समझ में नहीं आई थी जो उस टाइम पे बता रहे थे। कोई बात या तो आपकी तरफ से होने लगी थी या मेरी तरफ से होने लगी थी जी। हाँ, शायद उस टाइम पे कुछ और बोला था। मैं और आप दोनों सेम उम्र के हैं। अच्छा, मगर आपकी आवाज भारी जाता है, और आप जो हैं शायद हाइट में लंबे तड़ंगे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए इरशाद साहब, मैं इतना ही बताऊंगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर तौहीन करने वाला शख्स मोमिन नहीं रहता, चाहे वो जर्रा बराबर ही क्यों ना हो। इसीलिए तो कुरान में फरमाया सहाबा इकराम से कि ए ईमान वालो, तुम हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ना पुकारो जैसे कि तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। जी जी सही, बिल्कुल सही। तो जब पुकारने को ही मना किया है तो फिर अबुल आला मौदूदी ने, जो हमारे नबी को माज़अल्लाह अरब का अनपढ़ चरवाहा बताया, माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ऐसे छोटों मक्कारों पर अल्लाह की लानत हो और पूरी दुनिया के ईमान वालों की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो अबुल आला मौदूदी पर। फिर इस अबुल आला मौदूदी ने हमारे नबी को अनपढ़ कैसे बता दिया? आप बताइए भाईजान, आप जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए आपसे जवाब पूछ रहा हूँ।
کیا جواب دوں؟ اب جواب تو دے دیا، پھر ایک ہی جواب بات ہے کو ہی گھمانا نہیں. پھرانا. الحمدللہ اچھے اسکالر بند ہو جاتے ہیں یہاں کے، زبانیں بند ہو جاتی ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، کیونکہ بات یہاں میرے آقا کی شان و عظمت کی ہے. یہ آپ اپنے یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں، اپنے علم کو اونچا کر رہے ہیں. یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ بات میں نہیں اپنے کہیے آپ. نبی کی محبت کا پیغام دے رہا ہوں آپ کو، توبہ کر کے مسلمانوں میں آسانی نبی ہو کا جائے گی. محبت کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں، یہ جو اپنا دعوی تو یہ تو فرعونی دعویٰ ہو گیا. لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ کفر والوں کے ساتھ ہیں، آپ کفر والوں کے ساتھ ہیں، اور فرعون مجھے بتا رہے ہیں. نہیں پھر نعوذ باللہ، میں غلط ارے بھائی بات ہی نہیں فرعونی کہہ بولتا رہے ہیں ہوں. نا، فرعونی دعویٰ. نہیں میں یہ کہتا ہوں دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اپنے علم پہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی، کبھی بھی ہو تو. دیکھو سنو، آپ بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے کہ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے. اب وہی چیز میں نے جب تمہارے گھر سے بتا دی تو اب آپ کے پاس جواب کیا رہ گیا؟ کیونکہ ابھی آپ مجھے بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے، بڑی اچھی نصیحت کر رہے تھے میرے لیے، اور وہی نصیحت میں نے بڑے اچھے سے سنی، اور لوگوں نے بھی سنی، اور سن رہے ہیں، سنیں گے. سمجھے؟ یہ آڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، سمجھے؟ اور وہی چیز پھر میں نے آپ کے گھر سے آپ کو سنا دی. اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا کہ ایمانداری کے ساتھ آپ بتائیے کہ آپ کس گروہ کے ساتھ ہیں، کس جماعت کے ساتھ ہیں. تو آپ نے بتایا کہ میں ISO سے جڑا ہوا ہوں. ہم آپ کی بات رد نہیں کر رہے ہیں میرے بھائی، یہی رد ہوگی بھی نہیں انشاءاللہ. سمجھ کا پھیر ہے، یہی تو سمجھ کا پھیر ہے. جب آدمی بات نہیں، آدمی ایک دوسرا آدمی. مگر میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ابو الاعلیٰ مودودی کی جماعت سے نکل جائیے، توبہ کر لیجئے اس جماعت سے، اور سنی حنفی. نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب کہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کریجئے. شادی شدہ ہیں تو تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح بھی کیجئے، اور اعلان کر دیجئے کہ میں نے اس جماعت کو چھوڑا. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ جو اس کمیٹی کی طرف سے کچھ وظیفہ وغیرہ ملتا ہوگا وہ نہیں آئے گا. اعلان کر دیجئے توبہ کا، اور پھر مسلمانوں کو سمجھائیے. یہاں کی دولت ٹھوکر پہ ماریے، یہاں کی دولت پہ مت جائیے. یہاں تو اگر بھوکے پیاسے رہ کے اگر دین کا کام کر لیا. مطلب یہ کہنے کا مطلب ہے کہ انسان جو کوئی بھی کام کرتا ہے تو کسی NGO سے چھوڑ ہی کے کرتا ہے نا. بے شک آپ نے منع کیا تھا کہ میں یہ سب نہیں جانتا، میں اس کو نہیں مانتا، مجھے نہیں پتا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ. ماننے کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے، مطلب کہنے کا مطلب آپ بھی اتنی باتیں بول رہے ہیں تو آپ نے بھی کسی مدارس سے سیکھا ہے نا. ارشاد بھائی کہ اوپر سے سیکھ کے آدمی ارشاد بھائی کہیں سے بھی. دیکھیے جب کوئی علم والا ہوتا ہے نا تو اپنے علم کے حساب سے بہت کچھ چونپے دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ سارے وہ بات نہیں جو بات کہی جا رہی اس موضوع پہ بات کیجیے نا. عادت ٹاپک پہ بات کریں گے تو کیا فائدہ؟ میرا موضوع ہی کچھ نہیں رہتا ہے، میرا یہی موضوع ہے کہ گستاخ رسولوں سے بچو، اپنے ایمان کو بچاؤ. وہ تو یہی میرا موضوع رہتا ہے، گستاخ رسولوں سے بچو اور اپنے ایمان کو بچاؤ. جو غلط چیز ہے تو انسان کیوں کرے؟ آپ جا کے کسی مندر میں پوجا نہیں نہ کرے گا، یہ تو غلط چیز ہے. یہ تو جو ہے ایک مسلم جو ایمان لایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے، جو اللہ اور رسول ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے، تو وہ مسجد میں جا کے آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.